लास्ट टॉपिक क्या हुआ था हमारा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया था, कंप्लीटेड। कटिंग से स्टार्ट करना था। Okay, cutting. If new plants grown from a piece of root or a stem, that is called cutting. For example, the best example is growing of sugarcane, rose. But one question: why new plants not grown from the piece of a sugarcane if it not have internode? When internode is the growing part of the plant, if it's not there, then the piece of the sugarcane can't grow. And the cells can't divide. Right? कोई बोलो right? Yes. One more thing should be added. Have birds. Nodes have birds from which new plants grown. If no internode, there should be no bird, and no bird, no plant can be grown from internodal part. Okay. Second example is, ये हम जितने पढ़ेंगे that will be artificial vegetative propagation. क्या पढ़ेंगे? Artificial vegetative propagation. Cutting is example, root cutting. बता मुझे याद है मैंने अमरूद का एग्जाम्पल दिया था, गुआवा का ना. Root cutting example. Is it beneficial for our health? How? Guava. Because the properties of the guava grown from the cutting is more Any guava, not only cutting. गुआवा बहुत अच्छी चीज है, अच्छी चीज है. क्या होता है, बेनिफिशियल कैसे है हमारी बॉडी के लिए? Antioxidants, vitamins and minerals. A lot of vitamins and minerals are found which helps in proper growth and nutrition of our body. Second example is stem cutting. A stem cutting example we have already discussed: sugarcane and rose. Second example is layering. Example of layering is jasmine, even grasses, but few, not all. This is a plant which have weak stem. If we fold a weak stem plant in such a way that some part remains buried inside the soil and some part remains or tips remains upper part of the soil. The part buried inside have nodes, and from nodes new roots arises. After the arrival of new roots,
we can cut it and grow as a new plant. That is called layering. One another example is goti, also known as air layering. Air layering नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना। एक बहुत अच्छा फ्रूट होता है, हमने काफी डिस्कस किया था इस फ्रूट को, शायद किया था। छिलका उतारो, रसगुल्ले की तरह मुंह में डाल जाओ। लीची, juicy, fleshy, but have seeds. But now seedless plants has also been developed. No problem, seed की प्रॉब्लम ही नहीं है, मुंह में डालो बिल्कुल रसगुल्ले की तरह, और बेनिफिशियल भी, कोई नुकसान भी नहीं। हाँ, कुछ पूछना है? जो बर्ड है यहाँ पर बड़ी पार्ट में, वो डिजाइन तो इसके रूट ग्रो करने के लिए नहीं है। Notes. जो नोट्स है वो उसके लिए तो डेवलप। When it comes in contact with moisture and soil, it develops new roots. That are the adventitious roots, not the true roots. Okay, air layering. What happens in air layering? Debark. Debark means उसके कवर को हम क्या करते हैं, नाइफ से, शार्प नाइफ से हटा देते हैं। ओके, देन अप्लाई और कवर इट और bind it with moist soil and dung. Moist soil and dung. After a short duration, roots arises, and if roots arises, we cut it and grow as a new plant. That is called air layering. Example is लीची, और लीची का सबसे बेस्ट वेराइटी तो बताइए, शाही लीची। एंड कहते हैं इसके कुछ न्यूट्रिएंट हैं जो बाकी कहीं नहीं पाए जाते, इसीलिए सबसे महंगी बिकती है। व्हाट इज द रीजन? आई एम नॉट द फसाई मेंबर, तो मैंने कभी पता नहीं लगाया, बट कंपैरेटिवली। थर्ड वन इज, इतनी जल्दी ग्राफ्टिंग आ गई? चलिए, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, ग्राफ्ट करना। हमने यहाँ 2 प्लांट ली, प्लांट लिए, एक दूसरा बड़ा सा प्लांट है हमारे पास, अगर हमने इसको यहां से कट किया, छोटे वाले प्लांट के अपर पार्ट को क्या किया हमने, कट किया, एंड कट द सेम girth plant twig from the second and bind it. This is the stalk, scion and stalks, और जब दोनों मिलते हैं आपस में तो both part get combined after some times, and then if we get fruit, the quality of fruit will be similar to quality of fruit grown on upper part. जहां से हमने upper part लिया था बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी होती है, और इसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, सर काटना को क्या बोलते हैं, सर कलम कर दिया कहते हैं ना। इसमें भी क्या कहते हैं, पुराने प्लांट का सर कलम कर देते हैं, काट देते हैं, कलमी बोलते हैं इसे। जो फार्मर्स ग्रो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, नर्सरी में और नाम देते हैं कलमी। कलमी इसलिए कि इसको कट किया जाता है, बट पढ़े लिखे लोग आप लोगों की तरह क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। बहुत सारे प्लांट हैं जो ग्राफ्टिंग के द्वारा ग्रो किए जाते हैं टू इंक्रीज देयर क्वालिटी एंड
quantity. For example, mango. मैंगो की आम अगर गुठली से ग्रो करें, it will take 7 to 10 years for fruit and flower. But grafting, fruit and flowering start from the same year. कोई एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं. सेकेंड थिंग, पेरेंटल कैरेक्टर्स रिमेन्स अनचेंज्ड. बट अगर हमने गुठली से उगाई है, इसकी स्वाद भी बदल जाती है और साइज भी छोटी हो जाती है. ठीक है, अगर साइज छोटी हो जाए और स्वाद खट्टी हो जाए तो मार्केट में इसकी वैल्यू गिर जाएगी कि नहीं. फार्मर्स विल बी हार्म्ड. so that's why this technique is grown by farmers to maintain the quality. ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग एक और अच्छा एग्जांपल है. यू कैन ग्रो more than one variety of same fruit on a single plant. एक गुलाब पे चाहे तो 6 तरह के गुलाब ग्रो कर सकते हैं. कभी करके देखा है? 6 तरह के गुलाब देखे नहीं होंगे, नहीं देखे होंगे ना. गुलाब के कलर कौन कौन से मोस्टली कॉमनली होते हैं? रेड, पिंक एंड व्हाइट. ब्लैक तो रेयरेस्ट है. हाँ, येलो तो हो जाता, मिल जाता है. ब्लूइश भी मिल जाता है. बट हाँ, रेड एंड व्हाइट, रेड, पिंक एंड व्हाइट कॉमन है. उसमें भी व्हाइट कम होते हैं, रेड और पिंक ज्यादातर मिलते हैं. बट ब्लैक इज रेयरेस्ट. बहुत मुश्किल से मिलते हैं बहुत मुश्किल से मिलते हैं. ये 3, 4, 5 तो आप ग्रो कर ही सकते हैं. जरूरी नहीं कि एक ही बार में ग्राफ्ट करेंगे. आज 2 ग्राफ्ट कर लिया, 2 अगली बार ग्राफ्ट करेंगे. यह फैसिलिटी है, क्योंकि रोज का प्लांट बहुत बड़ा नहीं होता. मैंगो का बड़ा हो जाता है. मैंगो में जो ग्राफ्टिंग करनी है एक ही बार करनी है. दोबारा करोगे तब तक तो मोटा हो जाएगा, और गर्थ मोटी हो गई फिर दोबारा उसका अटैचमेंट बड़ी मुश्किल होता है. अब एरिया तो मुझे नहीं पता. ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे एक टीचर थे, उन्होंने भी ब्लैक रोज ग्रो किए थे एक ही पे. उनका था रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक. 4 एक पे थे. 4 हो गए. बहुत बड़े हॉर्टिकल्चरिस्ट थे, हालांकि थे टीचर, बट पढ़ाई के बाद उनका यही काम था. जिस तरह आम आदमी अपने बच्चों की देखरेख करता है, फूलों की देखरेख करते थे. क्या मजाल था उनके गार्डन से कोई एक फूल तोड़ ले. उन्हें कोई कुछ कह दे बर्दाश्त हो जाता था, लेकिन उनके फूल को छू दे उनको बर्दाश्त नहीं होता था. लड़ाई हो जाती. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज टिश्यू कल्चर. What is tissue culture? Growing of new plants from a small piece of plant tissue, maybe tissue or maybe a single cell, and this process is called tissue culture. इसके लिए 2 हार्मोन्स की जरूरत होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, there is a small piece of tissue transfer into a nutritive medium that starts division and forms an undifferentiated mass of cell that is known as callus. Then 2 hormones, plant hormones used, auxin and cytokinin. They introduce the development, initiate the development of root and shoot, and very early they converted into a plantlet, छोटा plant. Plantlet कहते हैं. But we can't grow these plantlets directly into the field because they are under lab conditions. First of all, the process hardening should be done. During hardening, हम उसे लैब कंडीशन से निकाल के कंट्रोल्ड कंडीशन में रखते हैं, and then it becomes ready to face the external conditions successfully. Only then we can plant it outside in the field. This process is called tissue culture. Small piece
जनरली हम उसे क्या कहते हैं? टिश्यू टेकन एंड placed in a nutritive medium. Cells divide and forms mass of cells called callus. Auxin and cytokinin plant hormones used to initiate root and shoot formation. Now it becomes a plantlet and grow into field for further development. After tissue culture, next one is which type of reproduction is better, sexual or asexual? यही topic. क्या दूसरा टॉपिक? You are saying spore formation. स्पोर तो हो चुका है. Yes. Which mode of reproduction is better, sexual or asexual, and why? कौन सा बेटर होगा? Sexual reproduction. Sexual reproduction. Why? Variation and variation is not that. As it leads to a variety of species and differentiation, which increases their Good. और कोई? Anybody else? बोलो. Or you know better than me. Just you have to tell. Once. एक बार बोलोगे तो अपने आप बोल रहे हो. बोलो. एक मिनट मेरे समझ नहीं यार, अगर गलत ही हो गया तो क्या हो गया? Yes, good. बोलिए. Sexual reproduction helps in the evolution of an organism. Good. और कोई? Sexual reproduction is better because it leads to variation and that will increase the chances of survival of species. Good. Why variation is more common or oftenly found in sexually reproducing organism but not in asexual reproduction? Why? Due to the separate kind of chances of Okay. in sexual reproduction, half the genes come from one organism and the other half come from another organism, while in asexual reproduction, all the genes come from a single organism. Good. चलिए और कोई बोलेगा? बोल दो. चल, as you wish. Sexual reproduction is better mode of reproduction because during sexual reproduction, first work is to creation of copy of DNA. And creation of copy of DNA is a biochemical process, and no biochemical process is absolutely correct. There is always a chance of variation or change or mutation. And variation increase the chance of survival and adaptation. तो वेरिएशन का पहला रूट कॉज ड्यू टू इट अकर्स ड्यू टू या ड्यूरिंग द कॉपी ऑफ DNA formation, and second
recombination. Genetic material of two different parents unite or recombine in an offspring. Because mother's genetic combination is different, father's genetic combination is different, and if both combine, when two different genotype combines, some characters will be different from both. That increase the chance of variation, and variation increase the chance of survival by helping adaptation. अगर वेरिएशन नहीं होगी तो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करना मुश्किल है या नहीं? अच्छा, हमारी बॉडी में कोई चेंज हुआ है? अरे टेल की बात मत करो, वो तो हमने पत्थर से घिस घिस के खत्म कर दिया, यही ना? ओके, अच्छा नहीं लगता था ना, बंदरों की श्रेणी में आते थे, पर हम थोड़ा सोचने लगे तो हमने सोचा हमें बंदर से अलग होना है, अपनी पूंछ काट डाली. दैट्स अनदर केस. Sir, earlier pinna was not vestigial, but now pinna is vestigial. Pinna muscles. And appendix also. Yes, not pinna, pinna muscles. Good. And appendix भी good. Brain size increase हुआ और hairs कम हो गए, nictitating membrane समाप्त हो गई, thumb opposable, helps in tool making. और एक बार हमने टूल मेकिंग स्टार्ट कर लिया, देन वी स्टार्ट टू लीड द यूनिवर्स. अगर टूल नहीं बनाते हम टूल्स, तो जानवर हमसे बड़े स्ट्रॉन्ग थे, दे कैन किल अस, वो हमें मार डालते, एंड देन आवर सर्वाइवल बिकम्स इम्पॉसिबल. चाहे कितने भी ताकतवर हो, शेर के सामने पड़ते ही हमारी ताकत तो जवाब दे जाती है. लेकिन अगर हमारे हाथ में दूर से मारने वाला इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, हम बड़े आराम से जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसकी छलांग जितनी लगेगी उसके पहले हम उसे मार डालेंगे. देन इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस. और एक बार कॉन्फिडेंस हुआ, हमने सोचा 10 फीट की इंस्ट्रूमेंट बनाई, अब 20 फीट की बननी चाहिए, और बनते बनते हजारों किलोमीटर की रॉकेट और मिसाइल बन गई. फर्स्ट रॉकेट वाज फॉर्म्ड only to travel 2 to 3 meters. पहली बार लड़ाई में किसने यूज किया था इसे? टीपू सुल्तान. हाथ में ऐसे पकड़ते थे एक डंडे में, आग लगाते थे, 4 मीटर या 3 मीटर दूर जाके दुश्मन की सैनिक पे गिरते थे. रॉकेट लॉन्चर. बट उसके बाद हमारा राज्य खत्म हो गया इंडिया का, अंग्रेजों का आ गया, अंग्रेजों ने उसे डेवलप किया. सेक्सुअल मोड ऑफ reproduction is better because it cause variation. वेरिएशन क्यों कॉज करता है? पहला, बेसिक इवेंट of sexual reproduction is creation of copy of DNA. Basic event of is the creation of copy of DNA, and it is a biochemical process no biochemical process is absolutely
correct or identical, correct or mistake proof. Hence, there is always a chance of variation. Second thing, DNA of two parents combine in offsprings. It also cause variation. Hence, chance of variation in sexually reproducing organism is more. Sexually reproducing organisms is more, और वेरिएशन क्या करती है? इंक्रीज एडेप्टेशन और होना चाहिए हमारे यहाँ सर्वाइवल के लिए. वाई एडेप्टेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल? टू अडेप्ट टू द चेंजेस. बट चेंजेस आएंगी क्यों? ह्यूमन एक्टिविटी तो सिर्फ 10,000 साल भी नहीं है, 2,000 साल भी नहीं हुए, 500-600 वर्षों में हुए हैं. उसके पहले तो ऐसा कुछ नहीं था. Change is the law of nature. Change is the law of nature, and it's continuously changing, and it will continue to change in future till this planet survive. And to adapt themselves according to changing environment, we need variation. Because among all variation, some may help us to survive in changing environment, others may or may not help, that will be discarded by nature. And which help us to survive in changing environment will be protected or selected by nature. That is called natural selection. And theory of natural selection provided by Darwin, Charles Robert Darwin. अगर हम सोचे तो ए सेक्शन तो सेक्शन से बेटर है, क्योंकि अगर एक पेरेंट की सेक्शन में तो दो पेरेंट्स चाहिए, एक पेरेंट की एक्सटेंड होगी तो फिर वो तो 10 साल एक पेरेंट स्पीशीज रहेगी तब तक वो एक्सटेंड हो जाएगा. सेक्शन में तो एक ही चाहे रह गया. गुड, वेरी गुड. आज मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, थोड़ी देर पहले आ रहा था ना, रास्ते में पढ़ रहा था. तो स्टोरी थी कि एक बच्चा था, उसे पनीर रोल पसंद था और दूसरे को बर्गर पसंद था. वो कहता था कि मुझे तो बर्गर ही चाहिए, दुनिया की सबसे अच्छी चीज है बर्गर. दूसरा कह रहा था मुझे तो पनीर रोल ही चाहिए, मेरे लिए क्या, दुनिया के लिए यही सबको खाना चाहिए, नहीं तो मैं मारूंगा. इट मीन्स दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है. उसके लिए बर्गर बेटर है और दूसरे के लिए पनीर रोल बेटर है. लाइक दैट, अगर हमें पेरेंटल कैरेक्टर ही बेनिफिशियल है हमारे लिए और उसी को मेंटेन करना है, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर. बट इट्स नॉट नेसेसरली कि आफ्टर चेंज इन एनवायरनमेंट दैट कैरेक्टर रिमेन्स बेनिफिशियल. इन दैट कंडीशन whole species will be disappear.
Hence, for continuity of life on this planet, we have select variation or changes which may help us in future. For example, bacteria. Before, bacteria have a specific character which help them to survive against the use of antibiotics. But before use of antibiotics or discovery of antibiotics, both antibiotic resistant and without antibiotic resistant gene bacteria survive naturally, no threat for their survival. But accidentally, antibiotics has been discovered by human being and they use as a ब्रह्मास्त्र जिसका कोई काट नहीं. किसी बैक्टीरिया पर डालो, बैक्टीरिया का काम खत्म, बीमारियां हमारी ठीक होने लगी. अगर ऐसे केस में किसी बैक्टीरिया के पास डिजीज रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं होता, then bacteria will disappear from this planet, and if once disappear then we'll get free. हमें तो कोई बीमारी नहीं होगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ क्योंकि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन उनमें पहले से था. हालांकि एक्सप्लेनेशन दोनों दिया जाता है कि पहले से था नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा यूज करके एंटीबायोटिक की हमने उन्हें डिजीज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बना दिया. और दूसरा कहता है कि उनमें पहले से ही था लेकिन चूंकि उसकी जरूरत नहीं थी तो उसने अपना इंपॉर्टेंस दिखाया नहीं था. बट जैसे ही एंटीबायोटिक यूज किया गया, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ने अपनी यूटिलिटी साबित की और सारे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन वाले बैक्टीरिया सर्वाइव कर गए. तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस चीज की जरूरत है. हमें मैंगो की वैरायटी चाहिए तो ग्राफ्टिंग करते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है. ग्राफ्टिंग के द्वारा जो मैंगो मिलता है मोस्टली बड़ा पल्पी होता है और पल्प जिसमें अधिक होता है एक तो ज्यादा खाया नहीं जाता एंड इट्स डाइजेस्ट नॉट इजीली, टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट. और जो कमजोर लोग हैं या बच्चे हैं उनको डाइजेस्ट भी नहीं होता. ऐसे कंडीशन में गुठली वाला भी चाहिए हमें, बिकॉज दैट इज जूसी, और जूसी मैंगो का डाइजेशन जल्दी हो जाता है. होना चाहिए कि नहीं? दोनों होने चाहिए. ठीक उसी तरह वेरिएशंस हुआ, हमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों. जैसे बनाना हमें चाहिए, बनाना में सीड्स होते नहीं, तो बनाना कैसे होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होगा. होते हैं, अभी भी होते हैं, बट बड़ी पेकुलियर जगह पे. जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइब्स हैं वो जब आप आते जाते होंगे कभी कभार वो रोड के किनारे बेच देंगे या कहीं किसी चौक पे, उनमें से कुछ में सीड्स पाए जाते हैं ब्लैक कलर के. और एक और जगह पाई जाती है, पुरुलिया नाम सुना होगा आप लोगों ने, वेस्ट बंगाल के आसपास है. वहां भी जंगलों में एक वैरायटी पाई जाती है जिसमें 3-4 सीड्स ब्लैक कलर के पाए जाते हैं, राउंड से, काली मिर्च जैसी या पपीते के बीज जैसी, और वो केला बहुत मीठा होता है. बट ये बहुत कम है और कुछ ट्राइबल्स की ही इन तक पहुंच है. मार्केट में इनकी प्रोडक्शन बाहर होती नहीं और जंगल में प्रोडक्शन कम होती है, बट रेयरेस्ट है. हम जो नॉर्मल बनाना खाते हैं उनमें सीड्स अवेलेबल नहीं. दूसरी चीज, अंगूर जो खाते हैं उसमें भी सीड्स नहीं होते, विएबल सीड्स नहीं होते ना, सीडलेस होते. कैसे ग्रो करेंगे? जास्मिन में नहीं होते, जास्मिन कैसे ग्रो करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ना. ऐसी वी नीड बोथ फॉर डिफरेंट रीजन. चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ सरवाइव करना है तो वेरिएशन वाला या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर पेरेंटल कैरेक्टर को मेंटेन करना है बिकॉज दैट इज द सुप्रीम क्वालिटी, तो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूज आ सकते हैं, बट उसकी चांसेस कम होती है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसमें चेंजेस हो ही नहीं सकते, बिकॉज म्यूटेशन तो किसी में हो सकता है, बट ये है कि उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि यहां तो दो कैरेक्टर हैं, दो डिफरेंट कंबाइंस कर रहे हैं तो वेरिएशन आएगी 100%. और दूसरी क्रिएशन कॉपी डीएनए की, उसमें भी गलत होने की चांसेस होती हैं, हालांकि उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है, बट चांसेस. और अगर वेरिएशन आए तो ज्यादातर वेरिएशन हार्मफुल होते हैं, इसलिए वो सरवाइव नहीं करते. नींद तो नहीं आ रही किसी को? नहीं पक्का?
अब इसके बाद क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, आपने एक फूल देखी है, पीले कलर की होती है, लंबे से, दिल्ली की सड़कों के किनारे बहुत ज्यादा होते हैं, भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। कनेर का फूल बोलते हैं। तोड़ते हैं तो व्हाइट कलर का दूध जैसा निकलता है, लेटेक्स। देखिए आप लोगों ने, आज तो सावन में खूब चढ़ाए जाएंगे भगवान शिव को। जानते हैं फूल क्या है, भगवान शिव को क्यों चढ़ाए जाते हैं, जानते हैं? चलिए, वो जब फोटो स्टिक ले जाएगी तो बता देंगे। स्टोरी बड़ी अच्छी स्टोरी है, रावण की कृपा है और कुछ नहीं है। बता दूंगा जाते समय, अभी पढ़ लें थोड़ा सा। जितनी देर में फोटो स्टेट होगा उतनी देर में बता लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज योर टाइम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। यू नो व्हाट इज एंजियोस्पर्म्स? Yes. ये हमने 9th में पढ़ी होगी, डाइवर्सिटी में। एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। Angiosperm plants, flower is the reproductive part. Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperms। 5 डिवीजन होते हैं, उसमें सबसे वेल डेवलप होता है फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज एंजियोस्पर्म। एंड फ्लावरिंग प्लांट में होती है फ्लावर्स, सीड, फ्रूट सिर्फ इसी में होते हैं, बिना फ्लावरिंग प्लांट के फ्रूट्स नहीं होते। कोई फ्रूट्स हम खाते हैं? सारे फ्रूट्स खाते हैं, कौन सा नहीं? सारे खाते हैं। कनेर का फूल फ्रूट खाते हैं? नहीं खाते ना। वो भगवान शिव को एक और चढ़ता है, उनके जितने फूल चढ़ते हैं उनको, उनके फल कोई नहीं खाता सिवाय उनके। बेल का फूल नहीं चढ़ता उनको। हाँ, फ्रूट्स खाते हैं। अच्छा भी, ओके। फ्लावरिंग प्लांट्स, व्हाट इज फ्लावर? Reproductive part of a flowering plant, okay। चलिए, इसके अलावा कुछ, what is flower? think, कुछ तो सोचो। नहीं, फ्लावर इज ए, अब तो बोल दो। अब तो बोल दोगे। हाउ वी कैन से? नहीं, बड़ी गड़बड़ है। चलिए, एक फूल, कोई भी फ्लावर देख लीजिए। फ्लावर पहले प्लांट का देख लीजिए, किसी भी प्लांट में जहां से लीव्स या ब्रांचेज निकलती हैं, दैट पार्ट इज नोन एज नोड्स। जहां से ब्रांचेज या लीव्स निकलती हैं, दैट पार्ट इज नोन एज नोड। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लीव्स और नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड्स। एंड एपिकल पार्ट एंड लीव्स, अगर लीव्स, नोड, इंटरनोड और बर्ड हो तो उस चीज को क्या कहेंगे हम? सोटी तो कहेंगे। देखिए, किसी भी फ्लावर में पेटल्स and sepals are modified leaves. Petals are modified leaves.
and the point at which petals attach known as node, and distance between two nodes internode, and in the center of the each flower there is a bud known as apical bud. तो bud हो गई, leaves हो गई, node हो गया, internode हो गया. Then we can say that it is a modified. Clear? Now, next one is parts of a flower. Parts of a flower. कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लावर के? First one is sepals. Outermost green color protective. कैसा होता है ये? Outermost green and protective. किसको प्रोटेक्ट करता है? delicate parts. बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है. सेकेंड पार्ट इज पेटल्स. अच्छा लगता है देखने में, लगता है. गुड, वेरी गुड. पेटल्स इनर टू sepals. Inner to sepals, and its function is attract insects for pollination. But all petals are bright color. डल कलर भी होते हैं, कुछ में फ्रेग्रेंस होते हैं, कुछ में फ्रेग्रेंस नहीं होते, कुछ में फ्रेग्रेंस बड़े हल्के से होते हैं. डे ब्लूमिंग फ्लावर्स हैव ब्राइट कलर पेटल्स बिकॉज कलर्स कैन बी आइडेंटिफाइड ओनली ड्यूरिंग ब्राइट लाइट. रात को ब्राइट कलर क्या तुम जितने ब्राइट दे दो दिखेगा ही नहीं, तो बेनिफिट क्या हुआ? Hence, day blooming flowers have bright color petals, but night blooming flowers have dull color or white color flowers. होता है ऐसा? But they have very strong fragrance because they have to attract insects from far away. उनकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि दूर से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं during night. But during day, color is well visible. Hence, they attract insects by colors. यहाँ तक ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई नाइट ब्लूमिंग, डे ब्लूमिंग का एक एग्जांपल बताएंगे? Good. और कोई नहीं? जैस्मिन दिन में होती है रात में? रोज डे ब्लूमिंग, जास्मिन नाइट, एंड हरसिंगार जिसको कुछ लोग पारिजात भी बोलते हैं. आप लोगों ने देखा होगा ड्यूरिंग दुर्गा पूजा इसमें फ्लावरिंग आती है. पिंक कलर की छोटी सी स्टॉक होती है, उसके ऊपर व्हाइट कलर की 3-4 धारियां साइड से निकली होती हैं. रात में खिलता है, लगभग 500 से 800 मीटर दूर से बताता है कि मैं यहाँ हूँ. चौड़ी पत्तियां होती हैं, नहीं देखी? अच्छा, है यहाँ पर कहीं आसपास में कहीं है. जब भी मैं निकलता हूँ अक्टूबर में मुझे उसकी स्मेल आती है. कहाँ है मैंने नहीं देखा, बट जिस दिन इधर से निकलता हूँ कहीं ना कहीं से आती है स्मेल. मतलब 500-700 मीटर के अंदर में कहीं है. कहाँ है तो मैंने भी नहीं देखा. बट चलिए, शायद अक्टूबर में हो तो आपको दिखा दूं, मे बी. Okay, petals completed.
Second one is, third one is stamen, male reproductive part. Produce pollen grains. Third here, sepals first, petals second. पेटल्स का हमने वन लिख दिया. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट made up of two parts, anther and filament. Anther bilobed, मतलब दो हिस्से में होती है, and pollen grain develop inside it. Pollen developed inside it. Filament expose anther. What is the need of exposing anther? So that insects can get the pollen. Because after dehiscence जितना अधिक एक्सपोजर होगा, एक्सपोज होगा, ऊपर होगा, उतनी दूर तक पॉलन ग्रेन फैलेंगे, और जितने एरिया में पॉलन ग्रेन फैलेंगे, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी हायर और ग्रेटर. अगर हम इसका डायग्राम बना लें, anther and filament. Next one is pistil, female reproductive part. Carpel. Female reproductive part and made up of a stigma. What is a stigma? Top part is It is the top part which receives. Upper expanded sticky part. Upper expanded sticky part on which pollen land. Second one is style. Expose स्टिग्मा, क्योंकि स्टिग्मा अगर अंदर आ जाएगा, पॉलन ग्रेन की लैंडिंग की चांसेस कम हो जाएंगी. Third part is ovary, basal swollen part. Ovary is the basal swollen part. Suppose this is the still, this part is known as stigma, this part is style, and it is ovary. That is the basal swollen part. Inside the ovary, that is ovule. Ovule, or inside ovule, female gamete egg is found. Inside ovary, ovule is found.
एंड इनसाइड ओव्यूल क्या होगा? फीमेल गैमेट, एग इज फाउंड। लेकिन केवल एग नहीं होता, इसमें 8 सेल 7 सेल होते हैं, 3 ऊपर वाले बिना काम के, एक नीचे वाला के साथ 2 बगल वाले बिना काम के, और एक सेंटर वाला। सेल तो एक है बट न्यूक्लियस 2 है। सेल एक है बट न्यूक्लियस 2 है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सेल। और इसी से बनता है फूड, यही सेल फूड प्रोवाइड करता है ना। पॉलिनेशन, अब क्या है? Pollination. पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन, Transfer of pollen grain from anther to stigma. वेरी गुड। आप लोग आज पढ़ के आए नहीं? ऐसे पुराना टॉपिक था, 8 में पढ़ा 8 में पढ़ा हुआ है। चलिए, तो थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए या वही कंटिन्यू किया जाए? थोड़ा सा अच्छे। चल, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। कहां से कहां? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड Pollination. पॉलिनेशन। वैसे अब हम लोगों का सिलेबस खत्म होने के 3 ही चैप्टर होने हैं ना, हाफ ईयरली के पहले Yes. यस सर। खत्म होने के कगार पर, एक क्लास और या अधिक से अधिक 2 नहीं लगनी चाहिए। चलिए देखते हैं, अगले दिन खींच जाएगा। ओके, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called pollination. फ्लावर कितने तरह के होते हैं? No. कौन कौन से? Unisexual, bisexual. If flower have all 4 parts, that is called complete flower. इनमें 2 पार्ट जो लास्ट में हमने पढ़े, कौन कौन से? पेस्टिल एंड स्टामेन, दैट आर कॉल्ड एसेंशियल पार्ट्स। और बाकी के जो 2 पढ़े हमने, सेपल्स एंड पेटल्स, आर नॉन एसेंशियल पार्ट। अगर चारों पार्ट में से कोई एक पार्ट नहीं है, इफ flower have all 4 parts, that is known as complete flower, and if lack any part, any 1 or 2 part, that will be known as incomplete flower. On the basis of presence and absence of reproductive part, either pistil or stamen, flowers can be divided into 2 groups, unisexual and bisexual, and unisexual can be divided into 2 parts, staminate and pistillate. मतलब stamen है उसके पास या pistillate, it means male flower और female flower. कोई एक एग्जांपल unisexual flower का? Papaya is unisexual flower because male and female flowers develops on separate plant. मेल फ्लावर मेल प्लांट पे, फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट पे। एंड व्हाट्स अबाउट मैंगो? बड़ी मुश्किल काम है, उसमें यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं, और बिना सेक्स पार्ट वाले भी होते हैं ना। इसलिए देखते हो फूल तो बहुत लगते हैं, फल कम ही लगते हैं, होता है ऐसा। वैसे आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आप इवन फार्मर्स जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं, उनके पास भी जाओ तो आपको बताएंगे ये दवा स्प्रे कर दो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये दवा स्प्रे कर दो तो फूल बढ़ जाएंगे। दे नो मोर देन अस।
दुकान वाले बताते हैं नहीं दवाई है भाई, फूल कम लग रहे हैं ले जा, फूल बढ़ेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इट मीन्स इट्स ए मार्केटिंग इफेक्ट होनी भी चाहिए, बेचारे फार्मर को बेनिफिट तो होना चाहिए। और आजकल एक और टेक्निक उन्होंने सीखी है, मैंगो के पेड़ है ना, उनमें इंजेक्ट करते हैं दवा, तो ये हार्मोन होता है जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। जनरली मैंगो क्या होते हैं 2 साल में एक बार फल देते हैं या फ्लावरिंग होती है, बट इसके इंजेक्शन से हर साल फूल आ जाते हैं। पता नहीं कुछ दिन में क्या करेंगे, साल में 3 बार मैंगो उगाएंगे, बट दैट विल बी हार्मफुल। अच्छी तरह नहीं पकने के लिए तो खैर पक जाएंगे, आजकल हम जो खाते हैं अच्छी तरह पके हुए थोड़े होते हैं, एथिलीन केमिकली पकाए जाते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। Types of pollination. Pollination may be of 2 types, self and cross pollination. Transfer of pollen grain, from anther of a flower a stigma of the same flower. अब one example. और एग्जाम्पल क्या है? पी प्लांट में होता है सेल्फ, सब में होगा। जो बाइसेक्सुअल हैं उनमें कुछ हद तक सेल्फ हो सकती है। वैसे सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए 4 टेक्निक डेवलप की गई प्लांट्स के द्वारा, और ये टेक्निक कौन कौन सी है? डेवलपमेंट ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती। सेकेंड, pollen release and stigma receptibility is not synchronized. जब pollen grain रिलीज होगा उस समय स्टिग्मा उसको रिसीव करने लायक नहीं होगी, आइदर वो गिर चुकी होगी या अभी वो मैच्योर नहीं होगी। इट मीन्स दोनों मैच्योर हो ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं मिलता, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगी। थर्ड, पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा आर डिफरेंट, सिचुएटेड इन डिफरेंट होल, जिसकी वजह से इनकी चांसेस कम हो जाती हैं। और फोर्थ, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन सम फ्लावर्स, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर not grow or germinate on the same, pollen grain of the same plant not germinate on the same stigma, that is called self incompatibility. इन 4 कारणों से सेल्फ पॉलिनेशन इनहिबिट की जाती है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन तो हमने समझ लिया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। रख दीजिए फोन। ओके, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। बट क्रॉस पॉलिनेशन में हम 2 कंडीशंस देखते हैं। पहला, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू ए स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट, है ना।
प्लांट एक ही है बट फ्लावर अलग हो गया, डेफिनेशन के अनुसार क्रॉस हो गई, बट एक प्लांट का जीन तो एक ही होता है, तो टेक्निकली क्रॉस है बट जेनेटिकली क्या होगा ये सेल्फ। सेकेंड कंडीशन इन क्रॉस पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of a flower to a stigma of the flower on other plants. That is the really cross pollination. ठीक है, और इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जेनोगेमी। क्या टर्म यूज किया जाता है? जेनोगेमी। और सेम प्लांट हो बट फ्लावर डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड गेटेनोगेमी। ओके, देखिए क्रॉस पॉलिनेशन। सेकेंड टाइप इज क्रॉस pollination. Cross pollination, transfer of pollen grain from anther of a flower to a stigma of the other flower is called cross pollination. Now, double fertilization or fertilization. प्लांट में फर्टिलाइजेशन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? बोल। हाँ, बिल्कुल। हाँ, एक बार तो एक्स सेल पटले होता है, दूसरी बार वो पोला सेल पटले होते हैं। गुड, वेरी गुड। This is our diagram. Stigma, style and ovary. ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर हमने कहा था कितने सेल होते हैं? 7। 3 एंटीपोडल, ये किसी काम के नहीं। एक सेल है बीच में विच है 2 न्यूक्लियाई known as polar nuclei and 1 cell in the center that is called egg cell. Egg cell. This is the central cell or secondary cell. सेकेंडरी सेल देखिए, सेकेंडरी सेल, इसमें क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई। आफ्टर पॉलिनेशन pollen grain start to germinate and after germination a pollen tube develops. Pollen tube develops which have the content of the pollen grain. pollen tube के अंदर pollen tube के अंदर क्या होते हैं? 2 मेल गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट्स, 1 male gamete fused with 2 polar nuclei, और यहां 3 न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल न्यूक्लियाई। और 3 चीज अगर फ्यूज करती है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल न्यूक्लियस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। 2 प्रोसेस हुई। After pollination,
pollen tube, pollen grain, germinate, and after germination, pollen tube develops, pollen tube reach to ovule. Release two male gametes inside ovule. अब ये दो मेल गैमेट्स में से क्या होगा? एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई और सेकंड मेल गैमेट एक सेल. दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन. Fuse with two polar nuclei. This process is called, क्या कहेंगे? ट्रिपल fusion. It produces from triple fusion endosperm develops. Endosperm develop. ये क्या काम करेगा? It provide nutrition to developing embryo. Second male gamete fuse with, किसके साथ फ्यूज करेगा? एक से to give rise zygote, and zygote develops into embryo. This process is called syngamy. Syngamy. Fusion of male and female gamete to give rise zygote is called syngamy. Fertilization occurs twice. Hence, it is called, क्या कहेंगे इसे? डबल फर्टिलाइजेशन. हाँ, ह्यूमन बीइंग में भी सिंगेमी होते हैं. Addition of कहीं भी हो गया. दे दीजिए जेरॉक्स की, वैसे भी दे दीजिए. अच्छा, घड़ी आ गई है क्या? वो घड़ी पीछे है, ये घड़ी आगे है. तो 2 मिनट और ले लूं क्या? मुझे 3 पॉइंट लिखने हैं तो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. जस्ट 3 पॉइंट्स इसी में ऊपर लिख देता हूँ. नहीं आएगा?
इसी के ऊपर लिखिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन after fertilization, ovary develops into fruit, ovule into seeds or zygote into embryo, other parts follow. Okay, this topic has been completed. Okay, Sunata. Any queries? Any question related with this topic? Sir, air layering. Yeah. The diagram is Air layering. Air layering. This is a plant. For air layering, first of all, we debark. Debark means remove the bark of branch. ब्रांच के कवर को हमने रिमूव कर दिया एंड अप्लाई moist soil and tie it. After some times new roots arises. Roots arises on this debarked branch. हमने हटाया और इसके ऊपर सॉइल काउ डंग मॉइस्ट कंडीशन में कवर की और इसे किसी जूट के बैग से कवर अप कर दिया. Apply water continuously whenever it becomes dry, because if it becomes dry, no root formation will take place. And whenever roots arises, बाहर तक निकल आते हैं, then cut it and grow as a new plant. तो सर हमें इसको सॉइल के अंदर रखना होता किसको? नहीं, जब नया प्लांट हो गया तो सॉइल में लगा देते हैं, गड्ढा है. खोद. ये बात को हाँ जो अन- हाँ, बार्क हटा के अगर ओपन में छोड़ देंगे तो ड्राई हो जाएगा. उसको मॉइस्ट रखने के लिए उसके ऊपर सॉइल अप्लाई करते हैं. और सर वो टिश्यू करके था. टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर तो बड़ी सिंपल सी बात है. एक छोटा सा पार्ट हम निकालते हैं. ये पार्ट कहीं का भी हो सकता है, ठीक है, चाहे स्टेम के हिस्से से निकालें या एपिकल बड से निकालें. और उसको हम क्या करते हैं, एक बर्तन स्टेरिलाइज करते हैं, उस पॉट के अंदर न्यूट्रिटिव मीडियम रखते हैं और जब इसको न्यूट्रिटिव मीडियम में अप्लाई करेंगे तो इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगी. सेल डिवीजन होगी बट द सेल रिमेन्स अनडिफरेंशिएटेड, hence they continuously grow to form a mass or collection of cells that is called callus. And whenever callus grow to some extent, then we apply auxin and cytokinin hormones to initiate root and shoot formation. If root and shoot forms, they will known as plantlet. A small plant, then they go under the process of hardening, and after hardening transfer to the ground or crop field. Okay, और कुछ?
अब एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लूं, Yes. से तो जेरोक्स की जरूरत है नहीं, कट कर दें, बेकार में अपने पेज बेकार हो जाए। Okay, next one is each pollen grain have two male gametes. Then how many pollen grains are required to fertilize 10 female gametes in angiosperm plant? 10. Why? वह वो दोनों एक सेक्शन Okay, because each ovary requires two negative. two fusion is required, one for endosperm development and the other for zygote formation. Hence, for to fertilize 10 ovary, 10 male gametes are, sorry, not male gametes, pollen grains are required or needed. अब हो गया